So hello everyone. So we are going to start our new chapter today, that is quadratic equation. Now you must have studied is this thing in polynomials when we were talking about polynomials in our ninth standard. You must have seen linear, quadratic, cubic, these kind of polynomials. So what quadratic is? Okay. So any quadratic equation is one which is having highest degree of the variable highest degree as 2. See, if we all know about it, if we are having anything x plus 3 like this, it is linear because the variable is having highest degree as 1. If we are having x2 plus 4, it is quadratic because the highest degree is 2, it is quadratic. If x3 plus 5 is equal to uh, anything, so it is cubic. Okay, so highest degree we have to check in a polynomial. If it is 2, that means we are having that as a quadratic equation. वो क्या हो जाती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब क्वाड्रेटिक का सिंपल है कि अगर डिग्री 2 है ना पॉलिनोमियल में, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है. ठीक है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? व्हेन वी आर हैविंग इक्वल साइन. देखो, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में यही डिफरेंस होता है. इफ़ आई एम राइटिंग समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 5, it is not a equation, it is what? It is a expression. But if I am writing x square minus 5 is equal to minus 1, now it is what? It is a equation, and it is a quadratic equation because you can check the variable is having highest degree as 1. Now when we come to the standard form of a quadratic equation, if we talk about standard form of a quadratic equation, so a standard form of quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0. This is the standard form of a quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. Now basically whenever you will find a equation of the form, you will be asked in the question, find the roots or find the zeros. Find the roots or find the zeros. This thing you must have done in ninth standard also by doing middle term splitting and all, है ना. So these are what is the root of a equation. root क्या होता है? root is what? The value which we put in place of x and we get 0. x की वैल्यू हम जो भी इस इक्वेशन में पुट करें और आंसर हमें 0 मिल जाए, दैट इज व्हाट? दैट इज द रूट ऑफ द इक्वेशन. So see, to find the roots we are having three methods. We are having three methods to find the roots. तीन methods होते हैं. First is middle term splitting. Okay, middle term splitting. This one is the first one. You must have done in ninth standard also. ये किया हुआ होता है ninth class में. The second one is completing the square. This one is the second one. Third one, quadratic formula. So ये तीन मेथड्स होते हैं जिससे हम किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करते हैं या सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं. वी कैन से कैसे करना है. सपोज देखो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ फॉर द फर्स्ट मेथड. मैं फर्स्ट मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये वाला मिडल टर्म स्प्लिटिंग जिसको हम बोलते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. दिस इज़ द मेथड वी आर गिवन विद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10. ये क्वेश्चन दिया हुआ है मान लो. तो इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे? देखो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करते वक्त हमेशा क्या याद रखना है? पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? a. इसको मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म के साथ. और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने जा रहे हो तो इक्वल में हमेशा क्या होना चाहिए? 0. इक्वल में हमेशा 0 ही होना चाहिए बिकॉज वी शुड हैव इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a. और कांस्टेंट क्या है? c. तो a को c से क्या करोगे? मल्टीप्लाई. इफ़ यू विल मल्टीप्लाई a बाई सी. ओके, नाउ चेक. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 1. बिकॉज अगर कुछ नहीं होता है तो 1 है. 1 को 10 से मल्टीप्लाई, 1 को -10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया -10, बट वी विल यूज ओनली 10.
और इसके करेंगे हम प्राइम फैक्टर्स, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। अब हमें ना जो प्राइम फैक्टर्स करने पे ये सब आता है ना, इनको यूज करके हमें ये मिडल वाला कोफिशिएंट बनाना होता है जो x के साथ है। तो देखो ना इजीली बन रहा है, 5 माइनस 2 करने पे 3 आ रहा है ना, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 10 भी आ रहा है जो हमें चाहिए था, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई था। देखो बहुत ध्यान से ये चीज़ समझो, कभी गलती नहीं होगी। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में है, जब तुम ये फैक्टर्स, जब तुम इनको दो टर्म्स में बनाओगे, इन फैक्टर्स को दो टर्म्स में बनाओगे, तो उनको मल्टीप्लाई करने पे तो वही नंबर आना चाहिए जो इनको मल्टीप्लाई करने पे आ रहा हो, ए और सी को मल्टीप्लाई। और दूसरी चीज़, उनको प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाला आना चाहिए। साइन यू कैन यूज, साइन भी यूज कर सकते हो तुम। देखो तो मैं इसको कर रहा हूँ एक्स स्क्र। अब देखो 5 माइनस 2 करने पे 3 आएगा, लेकिन मैं लूँगा -5x। क्यों -5 ले रहा हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए माइनस साइन। देखो -3 चाहिए मुझे, तो मैं इसलिए -5x प्लस 2x। देखो -5 प्लस 2, -5 प्लस 2 करने पे -3 आ रहा है ना, तो इसलिए -5x प्लस 2x। और देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 जा 10, वो 10 भी आ रहा है जो मैंने बोला है। तो और माइनस ये वाला 10 इक्वल टू 0। अब चेक करो, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्र माइनस 5x, एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 5। एक्स स्क्र माइनस 5x, एक्स कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x माइनस 5 प्लस, इन दोनों में से चेक करो, 2 कॉमन लिया, अंदर बचा x माइनस 5 इक्वल टू 0। देखो ना, x कॉमन लिया, x माइनस 5, इन दोनों में से 2 कॉमन आया, यहाँ x बचा, 2 5 जा 10 होता है तो ये। अब देखो x माइनस 5 कॉमन ले लिया, x माइनस 5, क्या बचा, x प्लस टू इक्वल टू 0, है ना। सो x इक्वल टू 5 आ गया, और क्यों आया x इक्वल टू 5? क्योंकि x माइनस 5 को इक्वल रखेंगे 0 के। देखो x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5, क्योंकि 5 उधर चला जाएगा। अब x प्लस 2 को अगर 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल टू कितना आ गया, -2। ये तो तुम लोगों को पता ही है दैट एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दो सॉल्यूशंस आते हैं हमेशा, है ना। x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके हमेशा सॉल्यूशन कितने आते हैं, दो रूट्स आते हैं। बस 9th स्टैंडर्ड में ये सब पढ़ा है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इस मेथड में क्या है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और कैसे इसको यूज करते हैं हम लोग, ये चीज़ सीखेंगे, ठीक है। लेट्स टेक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। विल टेक एनी क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक ओनली। लेट्स टेक वन इक्वेशन विच विल सोल्व, ओके। लेट्स ओके, आई विल बी टेकिंग दिस वन। मान लो इफ़ आई एम टेकिंग 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ओके। This is the equation I am taking, 2x square minus 5x plus 3 equal to 0, and we need to find the roots, but by completing the square। कौन सा मेथड यूज करना है, completing the square। तो कैसे करना है, फर्स्ट थिंग ऑलवेज डिवाइड द इक्वेशन। देखो पहले तो मैंने बोला था हमेशा इक्वल के लेफ्ट साइड में होना चाहिए और इधर 0। ऑलवेज डिवाइड द इक्वेशन बाय वट, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा ना, उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। देख लो, बहुत ईजिली बता रहा हूँ मैं, बहुत ईजी मेथड बता रहा हूँ। जो करना है, सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर रहे हैं हम। जो भी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे लिखा है, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर दो। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। दोनों साइड्स, हमेशा दोनों साइड ही ऑपरेशन होता है। तो डिवाइड करेंगे तो देखो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0, है ना। अब 2 से ये 2 तो हो गया कैंसिल, बाकी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो बच गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2। और जो ये कांस्टेंट टर्म है ना, ध्यान से सुनना, जो ये कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ x नहीं है, उसको ले जाओ राइट साइड में, तो वो हो जाएगा -3/2।
देखो क्या किया है, पहले तो डिवाइड करना है, जो भी एक्स स्क्र का कोफिशिएंट होगा, वट एवर कोफिशिएंट विद एक्स स्क्र यू आर हैविंग, उससे डिवाइड कर दो। उसके बाद जब डिवाइड कर दिया, जो भी इक्वेशन बनी उसमें से कांस्टेंट जो बनेगा उसको कहाँ लेके जाना है, राइट साइड ले गई, -3/2 आ गया। अब क्या करना है, अब देखो इसको बनाना है आइडेंटिटी की फॉर्म में। ये आइडेंटिटी बनेगी, देखो कौन सी आइडेंटिटी मैं बताऊंगा। ये आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर बनेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस चीज़ में ना एक चीज़ ध्यान से देखो, या तो माइनस की आइडेंटिटी या प्लस की, ये दोनों बनेंगी। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, माइनस, तो माइनस वाली आइडेंटिटी हम बनाएंगे। अगर हमारे पास क्या है माइनस, तो हम माइनस वाली बनाएंगे, अगर हमारे पास प्लस होता है तो प्लस वाली बनाएंगे। अब माइनस वाली बनाएंगे तो देखो जो ए का काम है ना, वो यहाँ पे कौन कर रहा है, एक्स। देखो ये रहा ए स्क्वायर की जगह हमारे पास है एक्स स्क्वायर, फिर क्या आना चाहिए, -2ab। अब एक चीज़ देखो, a की जगह क्या है x, a को कंपेयर कर लो, a की जगह हमारे पास क्या है x। हमेशा इस आइडेंटिटी को फॉलो करेंगे, या तो प्लस या माइनस। यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस वाली फॉलो कर रहा हूँ। ए स्क्वायर -2ab, a की जगह तो x है तो मैं x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा पता लगे कि a की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, माइनस क्या होना चाहिए 2ab। अब यहाँ पे आना चाहिए 2, ठीक है, यहाँ पे आना चाहिए 2 मल्टीप्लाई x, क्योंकि 2ab, a की जगह क्या है x, और b क्या है अब हमारे पास। अब b जो भी देखो, यहाँ से x को हम हटा चुके हैं, x हम हटा चुके हैं, तो x को हटा के क्या बचा हमारे पास, 5/2, 5/2। तो क्या ये हमारे पास b है, नहीं। एक चीज़ चेक करो, हमने अपनी तरफ से 2 से मल्टीप्लाई किया है, वी हैव मल्टीप्लाइड बाई 2 से जो चीज़ मल्टीप्लाई की है डिवाइड भी तो करेंगे। बस हमेशा ना, जो भी यार देखो, बहुत सिंपल टर्म्स में अगर समझना है तो इसको ऐसे समझ लो, जो भी यहाँ पे दिया हुआ हो ना, ये 5/2x दिया हुआ है ना, 5/2 है ना, अगर मान लो 5/2 है तो तुम्हारे b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/4। नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो हमेशा, जो भी नंबर दिया हो। मान लो यहाँ पे होता, देखो मान लो यहाँ पे होता 7x, तो तुम्हारा b क्या बनता, 7/2। मैं कह रहा हूँ डिवाइड कर दो। अगर मान लो यहाँ पे होता तुम्हारे पास इस 5/2x की जगह 6x, तो तुम्हारा b क्या बन जाता, 6/2 यानी कि 3। समझ आ रहा है, b क्या बनेगा, जो भी यहाँ पे x के साथ इस x के साथ जो भी यहाँ पे होगा, फ्रैक्शन हो या नंबर हो, जो भी कोफिशिएंट यहाँ पे x के साथ होगा उसको 2 से डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे हमारा b क्या बना, 5/4 बना है। तो हम यहाँ पे 5/4 को क्या, स्क्वायर को ऐड करेंगे दोनों साइड, -3/2 में भी प्लस करेंगे 5/4 का स्क्वायर, दोनों साइड ऐड करना है, इस साइड भी इस साइड भी। अब ये देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू -3/2 प्लस 5 स्क्वायर इज व्हाट, 25 अपॉन 4 4 जा 16, 25/16। नाउ x माइनस 5/4 whole square equals to, take the LCM, 16 will be the LCM, 2 8 ja 16, so 8 3 ja 24 minus 24 plus 25. Okay, you all know simple calculation is 2 8 ja 16, 8 3 ja 24 and 25. So x minus 5/4 will be whole square will be equal to 1/16. Now you all know if we remove square remove करने के लिए इधर क्या करना पड़ता है, रूट। तो x माइनस 5/4 विल बी इक्वल टू +-1/4, क्योंकि जब भी हम रूट करते हैं ना तो हम प्लस माइनस दोनों साइन लगाते हैं। ये 1 तो 1 का स्क्वायर है, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 16 का रूट करने पे 4 और +-1/4। तो x माइनस 5/4 विल बी इक्वल टू, एक बार उसको +1/4 के इक्वल रखना है और एक बार x माइनस 5/4 को -1/4 के इक्वल रखना है। अब x माइनस 5/4 विल बी
अच्छा यहाँ पे हो जाएगा, देखो x विल बी इक्वल टू, ये -5/4 इधर आके प्लस 5/4, तो x विल बी इक्वल टू 6/4, 2 3 जा 2 2 जा, तो x इक्वल आ गया 3/2। और यहाँ पे x विल बी इक्वल टू, ये इधर आके प्लस -1/4 प्लस 5/4, तो x इक्वल टू 5 - 1 4/4, 4 to 4 cancel, तो x will be equal to 1. These are the answers we are getting for the question. See, this was the question we are given with, and these are the two roots of the question. By using completing the square method, you can just try this method for once. एक बार एक दो क्वेश्चन ट्राई करके देखो। मैं तो कहता हूँ जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है उसी को उससे ट्राई करो। अच्छा देखो, अगर इसी क्वेश्चन को हम मिडिल टर्म से करते, 2x² -5x + 3 = 0, ये क्वेश्चन था। अगर इसको मिडिल टर्म से करें तो क्या बनेगा, देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 3 जा 6, ओके 2 3 जा 6, एंड देन डू द फैक्टर्स, 2 3 जा 3 1 जा, सो वी नीड 5, सो 2x² माइनस, आई टेक 2x -3x, मैं दोनों माइनस ले रहा हूँ, माइनस माइनस क्योंकि प्लस हो जाता है, तो -2x -3x विल बी इक्वल टू -5x। अभी ऊपर मैंने वीडियो में बताया था, सो यू कैन चेक, +3 = 0। नाउ टेक कॉमन, इन दोनों में से 2x कॉमन, x -1 अंदर बचा, इन दोनों में से -3 कॉमन, x -1 अंदर = 0। नाउ x -1 2x -3, देखो x -1 2x -3 = 0, एक एक करके। अब x -1 को 0 के इक्वल रखा, x विल बी 1। जब 2x -3 0 के इक्वल रखोगे, x विल बी 3/2। सो दिस इज द आंसर वी आर गेटिंग। यू कैन जस्ट ट्राई दिस थिंग, okay, but you need to learn every method, this completing the square, this middle term. Now we are remaining with one more quadratic formula, एक और method बचा हुआ है, that is quadratic formula, ये भी तो बचा हुआ है। So how to solve a question by quadratic formula? Just I'll give you an idea. If you are having any equation of the form ax² + bx + c = 0, this is the form. See, first we need its determinant. See d, this is the value we find out, क्योंकि ये हमें बता देती है that we will be able to solve or not. So d, then we will be writing d = b² - 4ac. This is the formula to find d. Whenever you are going to find d, this is the formula, d = b² - 4ac. Now what will happen if you will find d, if d is greater than 0, अगर d जो है 0 से बड़ा है, that means you will get two different roots, means two different values of x, two different roots means two different values of x you will get if d is greater than 0। अगर तुम्हारी d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो टू डिफरेंट रूट आएंगे। इफ़ d इज इक्वल टू 0, अगर दो 0, टू डिफरेंट रूट एंड ऑल्सो रियल, दीज आर रियल रूट्स विल से। हाँ, इफ़ d इज इक्वल टू 0, अगर d जो है 0 के इक्वल आता है तब क्या होता है, इफ़ d इज इक्वल टू 0, टू इक्वल रूट्स विल बी देयर, टू इक्वल रूट्स, ओके, दो इक्वल रूट्स आएंगे इफ d इज इक्वल टू 0। बट वट इफ d इज लेस देन 0, अगर d लेस देन 0 आ गया, यू विल राइट नो रियल रूट्स, और तुम आगे सोल्व नहीं करोगे। ओके, d की वैल्यू फाइंड आउट करोगे ना, अगर ग्रेटर देन 0 आया आगे सोल्व करना है, इक्वल टू 0 आया तब भी आगे सोल्व करना है। बट इफ d इज लेस देन 0, यू विल राइट नो रियल रूट्स एंड यू विल एंड, तुम वहाँ पे उसको क्या कर दोगे, ख़त्म। ओके, वी विल सी अ क्वेश्चन, हम एक क्वेश्चन उसको देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। लाइक सपोज वी आर गिवन विद द इक्वेशन, एक इक्वेशन दी है, मान लो हमें 4x² + 3x + 5 = 0, मान लो ये इक्वेशन है। सो वी विल चेक, फर्स्ट वी विल फाइंड d। अब d फाइंड आउट करते हैं, तो d इज b² - 4ac, यू ऑल नो। तो b क्या है यहाँ 3, 3² इज व्हाट 9 -4 इंटू a क्या है 4 एंड c क्या है 5। सो 9 - 4 4 जा 16, 16 5 जा हाउ मच 80। सो 9 - 80 -71, इट इज़ लेस देन 0। यू विल नॉट सोल्व, आगे सोल्व नहीं करोगे, तुम लिखोगे नो रियल रूट्स।
बट अगर डी ज़्यादा आ जाए या इक्वल आ जाए तो क्या करना है? देन यू विल सोल्व, बट यू विल सोल्व बाय यूजिंग quadratic formula. So what is the quadratic formula? Quadratic formula is x equals to minus b plus minus root d upon 2a. This is the quadratic formula. X equals to minus b plus minus root d upon 2a. Now see, if you are given with the equation, मान लो तुम्हें एक इक्वेशन दे देता हूँ मैं, एक सिंपल इक्वेशन हम लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0. मान लो ये वाली इक्वेशन दी हुई है. अगेन वी विल फाइंड डी. डी के लिए फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना. तो सोल्व करते हैं. बी स्क्वायर 3 स्क्वायर इज़ 9 माइनस 4 इंटू ए क्या आ रहे हैं, ए की वैल्यू है 1, बट सी की वैल्यू देखो माइनस 4 है, तो साइन का भी ध्यान रखना है, माइनस 4 है ना. तो ये आ जाएगा 9, 4 4 जा 16 प्लस 16 प्लस 9 इज हाउ मच 25. नाउ d इज ग्रेटर देन 0. देखो d जो है 0 से बड़ा है. नाउ यू कैन सोल्व, आगे सोल्व हो सकते हैं. तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू सोल्व? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a. ये फॉर्मूला लगाएंगे. माइनस बी क्या होता है? देखो कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. ए क्या होता है? जो x के साथ होता है. बी क्या होता है? जो एक्स स्क्वायर के साथ a होता है. बी क्या होता है? जो x के साथ. और सी क्या होता है? कांस्टेंट. तो माइनस बी, देखो ना b की वैल्यू क्या है? माइनस 3 है, तो माइनस और माइनस 3 ये, तो ये हो जाएगा प्लस 3. देख लो b मैंने प्लस 3 क्यों लिखा है? b इज इक्वल टू माइनस 3, लेकिन यहाँ माइनस एक और है, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी. अच्छा d अगर हमारा 25 है तो रूट d क्या आएगा? प्लस माइनस 5. तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ तो 1 ही है, कुछ नहीं है. तो अब x को एक बार तो लिख देंगे हम 3 प्लस 5 अपॉन 2, और एक बार x को लिखेंगे 3 माइनस 5 अपॉन 2. तो x विल बी 8/2. 8/2 करने से x की वैल्यू आ गई 4, और x विल बी माइनस 2/2 करने से x की वैल्यू आ गई -1. ओके, -1. सो दीज आर द मेथड्स यू विल ट्राई टू सोल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करने के जो तुम मेथड्स यूज करोगे, ये 3 मेथड्स हैं. 1 by 1 ऑल द मेथड्स आर एक्सप्लेन्ड इन दिस वीडियो, सो प्लीज़ ट्राई टू वॉच. दैट्स ऑल.